Rameshwaram temple is one of the very famous Jyotirlinga temple of Shiva, and for me this is not the first time coming here, this is my second time, which I am feeling like literally very blessed. Hi everyone, welcome back to a new vlog, a new destination. I am in Rameshwaram, but today I am starting my video from Dhanushkodi. Dhanushkodi is only 19.5 kilometers from Rameshwaram. A drive through Rameshwaram Dhanushkodi road is definitely one of the most scenic drives of India, and trust me, you shouldn't miss it. On one side of the road you can see turquoise blue Indian Ocean, and on the other side a blue greenish Bay of Bengal. यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ऑटो, रेंटेड कैब, ग्रुप ट्रैवल के लिए बस, बहुत कुछ मिल जाएगा। बस आप लोग बार्गेनिंग थोड़ा ठीक से कर लो। इस बार मैं गई थी सिर्फ 2 जगह, धनुषकोडी और पंबन ब्रिज, और मैंने जो ये सफर किया था ये इस अन्ना के साथ किया था। तो बट आई टेल यू, एवरीबडी इज वेरी प्रोफेशनल, सो यू ऑल्सो माइंड योर बार्गेनिंग स्किल्स। और जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हो, नज़ारा तो सुंदर है ही, और उसके साथ समुद्री रेत, तेज हवा और थोड़ा बहुत धूप, आपको वो भी मिलेगा। मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को 3-4 बजे वहाँ तक पहुँच जाओ, उतना धूप भी नहीं रहेगा, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय द सनसेट एंड द लवली ओशन ब्रीज। It's a ghost town, but no ghost over there. Yes, you know, like till 1964 there used to be a nice village over here, but after the cyclone it has been ruined and destroyed so badly. This is my second visit here. If I tell you guys, like this side is the Bay of Bengal, which is so quiet, so calm, and just look at the color. You can't differentiate the color of the sky and the color of this sea over here. And this is on the left hand side as I'm standing straight towards this way, and this right hand side is the Indian Ocean. Let's go over there. And this side is Indian Ocean. मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना सुनाई देगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, but this side is Indian Ocean guys, and just see waves, the color, oh god, this is so lovely. This is just awesome. And at certain point you see the Indian Ocean and the Bay of Bengal meeting together. If you are coming here around by 3 o'clock, you are starting your tour of sightseeing, then I think it is perfectly a good time. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, locals भी है जो घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे. This is actually a land's end. I will be going over that side. रामेश्वरम अगर आ रहे हो तो धनुषकोडी is a must. चलो थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत भीड़ है. But it's just a weekday today, not a weekend. More than the vibes, I'm enjoying the color of the water over here. Both are like amazing in color. So this is the Land's End, and it's a very famous spot in Dhanushkodi. बहुत सारे reels वगैरह आप लोग देखे होंगे, drone shots and all of this place. So 24 kilometers away from here to that side of the sea is the village of Sri Lanka. बट अफसोस ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल आके मिल रहा है, एंड द विजिटर्स आर एंजॉयिंग द प्लेस एंड द वाइब लाइक द वे आई एम डूइंग. तो जब आ रहे हो थोड़ा टाइम लेके आओ, खरीदने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लाइक कॉन्च, कलरफुल स्टोन्स, क्रिस्टल्स, शेल्स, मोती वगैरह. तो इट्स लाइक मोर और लेस यू गेट सो मेनी थिंग्स. देयर आर फ्यू स्टॉल्स, यू कैन गेट सम कोकोनट जूस, सम आइस क्रीम, tea वगैरह and other refreshments, and also I spotted seafood stalls as well, so you can enjoy. Next I wanted to visit this lighthouse, but as I was really not aware that there is a lighthouse in Dhanushkodi, so my driver don't want to stop, and moreover he was asking like 100 or 200 rupees extra, so it's a sort of scam, you know. जब आप जा रहे हो यहाँ पे, डोंट मिस आउट
गाइस, और अब पहले से अपने ड्राइवर को बता दो ताकि ये आपके साथ ना हो। In my background you can see that used to be the railway station before 1964. I mean before the cyclone it happened. अभी तो कुछ भी नहीं है. There used to be a living village और all of a sudden just in a night everything is washed away. The history behind it, the tragedy behind it, you can feel the pain of these people. चर्च था यहाँ पे, अभी तो ऐसे ही है, धीरे धीरे बन रहा है ये टाउन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसे परमानेंटली नहीं रहता है यहाँ पे। बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं और वो भी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि दे आर ऑल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे आर ऑल एंजॉइंग द प्लेसेस। अदर देन दिस धनुषकोडी, इन योर साइट सीन tour you have lots of temples in and around Rameshwaram, so don't miss out those guys. I have already visited this place long before, that time I was with my parents, तो मैंने घूम लिया। अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि पैर में चोट लग गया है मेरा। तो ये सब जो टेम्पल्स वगैरह है, don't miss out at those, definitely go there and see the history, the importance and the culture which is associated with Rameshwaram, with India. And then my next stop is the Pamban bridge. But basically this road bridge is known as the Annai Indira Gandhi bridge, which connects the national highway with Rameshwaram. And the railway bridge is known as the Pamban bridge, which is connecting the island of Rameshwaram to the mainland. चलो थोड़ा history जानते हैं इस bridge के बारे में. So this bridge opened on 24th of February 1914. It was the longest sea bridge in India until the opening of the बांद्रा वर्ली सी लिंक इन 2010। 2015 जब मैं मम्मी पापा के साथ आई थी चेन्नई से, तब मैं ट्रेन से ही आई थी एंड दैट एक्सपीरियंस वाज जस्ट ऑसम। बट फिलहाल अभी तो ये सर्विस बंद है बिकॉज ऑफ सम रिकंस्ट्रक्शन इन दिस रेलवे ब्रिज, सम वर्क्स आर गोइंग ऑन। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, द स्टेशन यू हैव टू गेट डाउन इज मंडपम एंड रामानाथपुरम। वैसे तो रामेश्वरम इज वेरी मच वेल कनेक्टेड वाया रोड एंड आई ट्रैवल फ्रॉम त्रिची टिल हियर बाय बस। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, आई थिंक बाय February 2024 it will be reopened once again. This rail bridge from the midway can be raised to let ships and barrages pass through. The strong heavy wind over here can be one of the reason for the delay of the work, which I truly experienced over there. Neither I could speak nor hold the camera properly. I don't know what type of experience it was. This bridge is actually one of the main connectivity and it's a link with the highway, so obviously the cars or whatever they are not allowed to stop here, so they will be dropping you और फिर आप राइट साइड पे जाओ, लेफ्ट साइड पे जाओ, देख के क्रॉस करना क्योंकि बहुत ही बिजी है ये ब्रिज। अभी मैं वापस होटल में जाऊंगी, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, पैर का हालत बहुत ही बुरा है। मंदिर का दूसरा एक गेट है और इस कॉर्नर से आप देखोगे तो ये और एक गेट है, जहाँ से मैं आई हूँ वो और एक गेट है, ऐसे करके 4 गेट है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग टेम्पल एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल। दिस इज़ द वेरी फेमस कॉरिडोर ऑफ रामेश्वरम टेम्पल जो आपको करना चाहिए। इट्स अप टू यू, यू मे ऑल्सो स्किप दैट पार्ट, बट द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक यू हैव टू टेक बाथ इन द ओशन, दैट इज़ द सी, बे ऑफ बंगाल जो है, आपको वहाँ पे नहाना है समुद्र में। उसके बाद मंदिर के अंदर देयर आर 22 कुंड, तीर्थम जो बोलते हैं, उसमें जाके कुंड में आपको एक के बाद एक, मतलब इट्स वेरी इजी, इट्स अ वेरी नाइस प्रोसेस। टेक बाथ ओवर देयर लाइक 1 2 3 4 लाइक ऐसे 22 प्लेसेस है। टेक बाथ, चेंज योर वेट क्लोथ्स बिकॉज विथ वेट क्लोथ्स यू आर नॉट अलाउड टू डू द दर्शन। तो आप होटल पे भी जाके चेंज कर सकते हो या साइड पे भी है लाइक अ कॉमन स्पेस फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, वहाँ पे भी आप चेंज करके फिर दर्शन करके जा सकते हो। सो द टेम्पल ओपन्स फ्रॉम मॉर्निंग 6 till 1 o'clock 1 PM और शाम को फिर 3 बजे से 8:30 बजे तक। यू आर कमिंग हियर अर्ली एज यू कैन, क्योंकि यहाँ पे ना जितना लेट होता है धूप बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए मेरा ना पैर में मतलब ब्लिस्टर्स आ गया एंड
आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, इसीलिए मेरा जो आज का जो टूर था, आज का जो साइट सीन था, वो भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है. आई एम नॉट डूइंग वेल बिकॉज आई एम गेटिंग पेन. जिस गेट से आप लोग एंटर कर रहे हो वही गेट से बाहर निकलो, क्योंकि देर आर 4 गेट्स एंड गेटिंग आउट एट दैट टाइम ड्यूरिंग द सनलाइट इट्स क्वाइट पेनफुल गाइज. तो कुछ एरिया है जहाँ पे मोबाइल्स एंड कैमराज, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड. आई एम नॉट क्रॉसिंग दैट लिमिट. जितना जहाँ पे है मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ. काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रहा है ना यहाँ पे मंदिर के अंदर. आप बहुत कुछ खरीद सकते हो घर के लिए, जैसे ये रुद्राक्ष, कौंच, सो मेनी थिंग्स, माला वगैरह, मोती. স্টোনস নিয়ে যাদের আংটি পরার তার আংটি পরবে. ও ওই স্টোন। হ্যাঁ ওই স্টোনগুলো, যে আংটি রাখা আছে কত. This filter coffee is much needed when you get terrible headache. If you love coffee, do try the filter coffee of South India. It's nice. और 2-3 स्नैक्स भी पैक करके लिया है, वो मैं समुद्र किनारे जाके बैठ के खाऊंगी. अभी फ़िलहाल ये फिल्टर कॉफ़ी. It's quite nice. In and around this temple area there are many restaurants, obviously veg, and जिन लोगों को नॉन वेज मतलब खाना ही है, आप लोग 1 और 2 स्ट्रीट मतलब छोड़ के जाओ, यू विल ऑल्सो गेट वेरी गुड नॉन वेज फूड्स ओवर हियर. और जैसे यहाँ पे शाम से रात होता है ना, द क्राउड गेट्स reduced, even the stalls, the shops, they also gets closed. टेम्पल भी 8:30 तक क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे जल्दी सो जाते हैं सब कोई. एंड बाय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे they start their day. Randomly I asked one auto person and he helped me to book the room, so you can also come here like that and book the room. तो बस जो बार्गेनिंग करना है, एसी नॉन एसी जो भी है रूम चाहिए आपको, यू कैन गेट अकॉर्डिंगली. रूम्स, लॉकर्स, टॉयलेट्स. कितने हुआ अन्ना? 30. बॉइल्ड मटर भी है, प्याज, धनिया पत्ता. दिस इज 30 रुपीज़. क्वाइट सिंपल बट ठीक है, चलो शाम के लिए इट्स ओके. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए. A peaceful and a blissful day comes to an end with a little bit of pain in Rameshwaram. I will meet you guys in the next video. Till then, love.